Good morning, all my dear students. Once again, I, Harish Gangbar, am present here to explain the remaining part of Act 4, Scene 1 from The Tempest. So, without wasting any much time, I'll continue the explanation that we had left yesterday. So, be ready with your copy and pen and note down the important informations and details. My dear students, yesterday we had left here that I told you Prospero ordered his servant Ariel to bring all other meaner fellows, to bring all the rebels like Stefano, Trinculo, and Caliban there, and he wanted to show his magical powers to Miranda and Ferdinand and to celebrate their marriage. And today we'll continue from the next page. On Prospero's order, Ariel asked his master Prospero. Presently, he wants to ask him, has he to call everyone presently at the moment? एरियल ने पूछा, मास्टर क्या मुझे अभी प्रेजेंटली एट द मोमेंट सबको बुलाना है? एंड प्रॉस्पेरो सेज, yes, with a twink. With a twink means with a twinkle, like we say in Hindi, like पलक झपकते ही, तुरंत ही, at the moment. And Ariel says, and you very well know that Ariel is a musical spirit. All the time he sings, he plays music, and all the time he talks in a musical tone. And so, in his musical tone, he says, before you can say come and go, and breathe twice, and cry so, each one tripping on his toe, will be here with mop and mow. Do you love me, master now? अपनी म्यूजिकल टोन में एरियल क्या कहता है कि आप के कम एंड गो कहने से पहले ही और आपके दो बार सांस लेकर समझाने से पहले ही, आप दो बार सांस लेकर समझाते हुए कहेंगे ऐसा करो वैसा करो, उससे पहले ही ईच वन ट्रिपिंग ऑन हिज टो, सभी लोग अपने पैरों के बल चलते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर आते हुए दिखाई देंगे. And they will be here with mop and mow. Mop and mow means mop like the broom, jhadu, and mow the tool with the help of which we can cut grass from grassland, जिससे घास काटने का काम आता है जो टूल. तो उन टूल्स के साथ वो लोग यहाँ घूमते हुए नजर आएंगे और तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे. डू यू लव मी मास्टर? नो. एंड अगेन ही आस्क्स हिज मास्टर Prospero, does he love him or not? And at this Prospero replies, dearly my delicate Ariel. कहता है, एरियल तुम बहुत डियर हो मेरे लिए और बहुत ज़्यादा डियरली लव करता हूँ तुम्हें. And do not approach till thou dost hear me call. And what does he say? Don't return back till I call you. कहता है कि मेरे आवाज़ देने से पहले, बुलाने से पहले वापस मत लौटना. You have to return only when I call you. And so Ariel says, well, I conceive, means I understand. कहता हाँ मैं समझ गया जो भी आप कहना चाह रहे हैं. Totally understood. And now Ariel exits. Ariel goes from there. And again Prospero starts his conversation with Ferdinand. And again he wants to make Ferdinand understand that he must have patience. And he says, look, thou be true. Do not give dalliance too much the rain. कहता है फर्डिनेंड देखो अपने आप में ट्रू बन के रहना, और जो डेलियंस है, डेलियंस यानी बिल्कुल आपस में प्रेम दिखाने की जो ललक है वो एकदम उसके हाथों में अपनी लगाम मत दे देना. कहने का मतलब कि वो चीज़ अभी तुम्हारे अंदर से एकदम ऐसे नहीं जागना चाहिए कि आप मैरिज को भूलकर किसी और काम में लग जाएं. The strongest oaths are straw.
to the fire in the blood. And it says the strongest oaths, यानी बड़ी से बड़ी कसमें भी स्ट्रॉ बन जाती हैं, यानी सूखी हुई घास या भूसे की तरह बन जाती हैं जो ब्लड की फायर से जल जाती हैं। कहने का मतलब यहाँ द फायर ऑफ द ब्लड का मतलब क्या है कि जो एक्साइटमेंट है, एक्साइटमेंट की फीलिंग्स हैं, वो जब इंसान के अंदर दौड़ने लगती हैं तो पुरानी जो ओथ्स वो लिए हुए होता है, जो भी कसम उसने खाई होती हैं, वो एक तरफ साइड में हट जाती हैं और उन कसमों को तोड़कर वो दूसरे काम में लग जाता है। सो ही सेज द स्ट्रॉन्गेस्ट ओथ्स आर स्ट्रॉ टू द फायर इन द ब्लड. Be more abstemious. And again he says be more abstemious means have patience, have कंट्रोल ओवर योर सेल्फ. कहता है अपने ऊपर कंट्रोल रखना, नियंत्रण रखना, संयम रखना अपने आप में. और एल्स गुड नाइट योर वो. और क्या कहता है, अगर तुम ऐसा नहीं कर पाओगे तो तुम्हारी जो वो है, जो तुम्हारी ओथ है, कसम है, उसको गुड नाइट बोल देना. गुड नाइट का मतलब उनको तुम तोड़ ही दोगे, उनको तुम निभा नहीं पाओगे. एंड अगेन फर्डिनेंड एश्योर्स प्रॉस्पेरो. फिर से यकीन दिलाता है प्रॉस्पेरो को दैट आई विल डू नथिंग लाइक दिस. एंड ही सेज आई वारंट यू सर. क्या कहता है, मैं वारंट करता हूँ, आई इट मीन्स आई अश्योर यू, मैं यकीन दिलाता हूँ. द वाइट कोल्ड वर्जिन स्नो अपॉन माई हार्ट abates the ardor of my liver. He says the cold virgin snow upon my heart. कहता है कि मेरे दिल में जो ठंडक है, जो बर्फ़ की परत जमी हुई है, वो मेरे लीवर की एक्साइटमेंट्स को, कहने का मतलब जो हार्ट की एक्साइटमेंट्स हैं, उन फीलिंग्स को, किसी भी सेक्सुअल फीलिंग को अबेट करके रखेगा, रोक के रखेगा. कहने का मतलब आई एम अ कूल पर्सन and I will not be excited so much before marriage and I will do nothing such a task. And Prospero says, well, now come my Ariel, bring a corollary. Again he starts talking to Ariel. एरियल से उसने पहले ही कह रखा था कि डोंट अप्रोच टिल आई कॉल यू. नाउ ही ऑर्डर्स हिम ब्रिंग अ कॉरोलरी. कॉरोलरी मीन्स द स्पिरिट्स अंडर कंट्रोल ऑफ Prospero and under control of Ariel, because Ariel was on the top and under Ariel there were so many spirits. So he says bring a corollary rather than want a spirit. कहता है कि अब तुम सिर्फ एक स्पिरिट की तरह नहीं आओगे. Now you will be a master of all other spirits, appear and partly. कहता है अब आ जाओ, अपीयर हो जाओ, एंड पर्टली, बिल्कुल एट द मोमेंट, तुरंत, बहुत तेजी के साथ. एंड नाउ द सॉफ्ट म्यूजिक स्टार्ट्स प्लेइंग. नो टंग ऑल आइज बी साइलेंट. म्यूजिक प्ले होने लगता है और प्रॉस्पेरो सबसे कहता है कि नो टंग, कोई बात नहीं करेगा, सिर्फ देखिए, बी साइलेंट, और शांत रहिए. एंड नाउ एंटर आइरिस. Dear students, I think that you will be confused when you will see the new characters in the drama like Iris, Ceres, and Juno. These are some more characters that are ghosts or spirits, but they are goddess and gods. Because Prospero was a magician and he had control over so many gods also. And through Ariel, he has invited them to celebrate the party of Miranda and Ferdinand. So, who was Iris? Iris was the goddess of the rainbow and the messenger of the Olympian gods. She was often described as the handmaiden and personal messenger of Hera. Hera was also a god. So, this is the short introduction of Iris. I told you this that you should not be confused.
during the lecture. And after Iris, there is more character, Ceres, and sometimes it is called Ceres, Ceres or Ceres. Ceres was the Roman goddess of agriculture, grain, and the love of a mother bears for her child. She was the daughter of Saturn and Ops, the sister of Jupiter and the mother of Proserpine. Ceres was a kind and benevolent goddess to the Romans, and they had a common expression fit for Ceres, which meant splendid. In short, you must know that she was the goddess of agriculture, grain, and the love of a mother. But agriculture and grain you must note in your mind when the name comes of Ceres. Got it? Juno. Who was Juno? In Roman mythology is the wife of Jupiter and the queen of the gods. She was later identified with the goddess Hera, the wife of Zeus in Greek mythology. But in short, you must note who was she? Wife of Jupiter and the queen of the gods in reference to the drama of the Tempest. Is that clear? So now let's continue. So who is Iris? Iris is the god of rainbow and rain, and he calls here Ceres. And who was Ceres? The goddess of agriculture and grain. So he calls Ceres most bounteous lady. वो कहता है कि तुम बहुत bounteous हो. Bounteous means you have everything in abundance, in great measure, the cereals and all kind of agricultural foods. Thy rich lees of wheat, rye, barley, vetches, oats, and peas. Thy turfy mountains where live nibbling sheep, and flat meads thatched with stover them to keep. Thy banks with buoyant and 12 brims. He says, rich lees. Lees means the fields of wheat, rye. Rye is a kind of cereal. In Hindi, it is called rye. It is a plant of a mustard family, and it is included in some spices. Barley, vetches, and vetch is a kind of animal food for eating and grazing, and oats and peas. The turfy mountains. Turfy means in a zigzag bay, high and low mountains where live nibbling sheep. Nibbling means very active. And flat meads और दूर दूर तक सपाट मैदान, pastures, grasslands, thatched with stover. Stover is also a kind of animal food to graze, जिसको जो जानवरों के लिए हरा चारा होता है, उससे कवर्ड बहुत लंबे लंबे घास के मैदान. दैम टू कीप. किसके लिए? शीप के लिए. जहाँ माउंटेन्स में, टर्फी माउंटेन्स में जो शीप रहती हैं, उनको जिंदा रखने के लिए तुम्हारे पास बहुत बहुत बड़े घास के मैदान भी हैं. Thy banks with point and twilled brims. Brims means the edges, the side, the shore, किनारा. Point and twilled means very projecting, बाहर को निकलते हुए and घुमावदार. Twilled means decorated by grass and other flower plants. And here Prospero says, which spongy April at thy haste betrims, to make cold names chest crowns. Spongy April means dry April, dry month of April. At thy haste, at your order, betrims. Betrims means it covers all the area, all the ponds and water bodies
आइरिस यहाँ कहता है सिरस से कि तुम्हारे ऑर्डर पर अप्रैल के ड्राई मंथ में भी हर जगह हरियाली होती है। फ्लावर प्लांट्स होते हैं, डेकोरेटिव वाइनयार्ड्स होते हैं। टू मेक कोल्ड निम्स चेस्ट क्राउन्स, जहाँ पर सुंदर अप्सराएं हैं, निम्स हैं, वो सुंदर क्राउन्स बनाती हैं। एंड दाई ब्रूम ग्रोव्स मीन्स ऐसे ग्रोव्स जो बिल्कुल अर्थ को टच करते हैं, ऐसे ग्रोव्स को हु शैडो द डिसमिस्ड बैचलर लव्स, ऐसे ग्रोव्स की जो शैडो होती है, जिनके अंदर बैठकर बैचलर्स, डिसमिस्ड बैचलर मीन्स डिसअपॉइंटेड बैचलर्स, डिसअपॉइंटेड लवर्स वहाँ पर बैठते हैं। एंड दे लव टू बी बीइंग लेस लॉन, अकेले रहना, शांत में और एकांत में रहना वहाँ पसंद करते हैं। द पोल क्लिप्ड वाइनयार्ड, पोल क्लिप्ड वाइनयार्ड मीन्स जो लताएं होती हैं, सुंदर फूलों की बेलें होती हैं, जो पेड़ों पर पोल्स की तरह लिपटते हुए ऊपर तक जाती हैं, फिर नीचे आती हैं, जो ग्रोव्स बनाती हैं। एंड आई सी मार्ज स्टेरिल एंड रॉकी हार्ड, सी मार्ज मीन्स सी शोर, जो समुद्र का किनारा है वो स्टेरिल यानी प्योर है, रॉकी हार्ड और वहाँ बहुत सारे रॉक्स हैं, और जो किनारा है वो हार्ड है रॉक्स की वजह से। वेयर द दाई सेल्फ डस्ट एयर द क्वीन ऑफ द स्काई, और जहाँ पर समुद्र के किनारे पर जब वेव्स आती हैं तो उनके ड्रॉप्स से स्काई में जो एयर जाती है वो एयर क्वीन ऑफ द स्काई के लिए होती है। सो आइरिस हैज़ प्रेज्ड सो मच टू सेरस, सेरस की बहुत ज़्यादा तारीफ करता है, और बाद में अपना इंट्रोडक्शन देता है। हुज वाटरी आर्क एंड मैसेंजर एम आई, वाटरी आर्क मीन्स रेनबो, इंद्रधनुष, एंड मैसेंजर एम आई, तो कहता है कि मैं जूनो का, जो क्वीन ऑफ द स्काई है, क्वीन ऑफ द ऑल गॉडेस है, गॉडेस एंड गॉडेसेस, मैं उसका मैसेंजर हूँ और उसका रेनबो हूँ। बिड्स दी लीव दीज एंड विद हर सॉवरेन ग्रेस, तो कहता है कि इन सभी चीज़ों को, व्हाट ऑल दीज थिंग, द टर्फी माउंटेन्स, द ग्रीन फील्ड्स एंड द पैस्चर्स, द ग्रोव्स एंड ऑल वाटर बॉडीज, कहता है कि इन सभी चीज़ों को छोड़ दो और मेरे साथ आओ। एंड विद हर सॉवरेन ग्रेस, और जो क्वीन ऑफ द गॉड एंड गॉडेसेस है जूनो, उसकी कृपा के पात्र बनो, और जो ग्रोव्स हैं उनको लवर्स के लिए छोड़ दो। एंड कम विद मी। और इसी बीच जूनो भी आ जाती हैं, और आइरिस फिर से बोलता है सेरस से, हेयर ऑन दिस ग्रास प्लॉट इन दिस वेरी प्लेस टू कम एंड स्पॉट, कहता है दैट आई इनवाइट यू, सेरस से कहता है मैं तुम्हें इनवाइट करता हूँ कि इस ग्रास प्लॉट पर मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ, स्पॉट करो, यानी अपना कुछ मैजिक दिखलाओ यहाँ पर आकर। हर पीकॉक्स फ्लाई अमेन, पीकॉक्स फ्लाई अमेन मीन्स जो उसके चैरियट को खींचने वाले पीकॉक्स हैं वो ड्रॉ कर रहे हैं, इट मीन्स शी इज़ कमिंग वेरी सून, वो आ चुकी हैं, जूनो आ चुकी होती हैं। अप्रोच रिच सेरस हर टू एंटरटेन, तो आइरिस सेरस से कहता है कि जल्दी आ जाओ, जूनो जो गॉडेस हैं, क्वीन है, वो आ चुकी हैं और उनको एंटरटेन करने के लिए जल्दी मेरे साथ आओ। एंड देन सेरस एंटर्स and she welcomes Iris, hail many colored messenger that never does disobey the wife of Jupiter, तो कहती है हेल मीन्स हेलो, जो भी उनका ग्रीट करने का तरीका है, हेलो, हाय, वेलकम, उस तरह से वो उसे वेलकम करती है, और कहती मैनी कलर्ड मैसेंजर, जो कभी भी वाइफ ऑफ जुपिटर को डिसोबे नहीं करता है, हमेशा उसको ओबे करता है, हमेशा उसकी बात मानता है। Who with thy saffron wings upon my flowers diffusest honey drops. And Cirrus says, she says to Iris
that you have saffron wings, and upon my flowers with your wings you drop some honey. कहती कि मेरे फूलों पर, मेरे ग्रासलैंड पर अपने विंग्स से तुम ड्रॉप्स गिराते हो, हनी ड्रॉप्स, रिफ्रेशिंग शॉवर्स, और वो रिफ्रेशिंग शॉवर्स की तरह फील होते हैं. एंड विद ईच एंड ऑफ दाई ब्लू बो, और उसके जो किनारे हैं, रेनबो के दोनों साइड के किनारे, तो एक ऐसा डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, ऐसा लगता है क्राउन बना हो. यू मस्ट हैव सीन, इफ़ यू मस्ट हैव सीन अ रेनबो, यू मस्ट नोटिस दैट इट लुक्स लाइक अ क्राउन. तो वो कहती है कि तुम्हारे जो ब्लू बो है वो एक ऐसा क्राउन बनाता है. डस्ट क्राउन माई बॉस्की एखर्स एंड माई अनश्रब्ड डाउन. तो इंद्रधनुष है वो क्राउन बनता है किस पर? माई बॉस्की एखर्स, यानी जो हरे भरे खेत खलिहान है, मैदान है, उनके ऊपर. एंड अनश्रब्ड डाउन, अनश्रब्ड डाउन यानी जहाँ पर कोई श्रब्स नहीं है, जहाँ पर झाड़ियाँ नहीं हैं या हरियाली नहीं है, दोनों जगह पर. रिच स्कार्फ टू माई प्राउड अर्थ, और ये मेरी प्राउड अर्थ पर एक स्कार्फ की तरह दिखाई देता है. व्हाट इज द स्कार्फ ऑफ द अर्थ? द ग्रीनरी, द ग्रीन फील्ड्स एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. तो वो उसकी तारीफ करती है कि जो रेनबो है आयरिस, वो कैसे उसको डेकोरेट करता है. एंड अगेन शी आस्क अ क्वेश्चन, व्हाई had thy queen summoned me hither to this short grassed crane. तो कहती है ठीक है तुम यहाँ आए हो. What is the reason that your queen has summoned me here on this short place? कि इतनी छोटी सी मामूली जगह पर मुझे बुलाया है, प्रोस्पेरिको आइलैंड पर मुझे कॉल किया है, क्यों किया है? What is the reason? And on her question Iris replies, a contract of true love to celebrate. क्या कहता है? Contract means marriage. I already discussed with you that marriage is a social contract. तो क्या कहता है कि एक स्वीट मैरिज है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए, एंड सम डोनेशन फ्रीली टू एस्टेट ऑन द ब्लेस्ड लवर्स. एंड यू हैव टू गिव सम डोनेशन, मीन्स यू हैव टू गिव सम गिफ्ट टू द न्यूली वेडेड lovers. So come to me and come with me to that place. And again Ceres asks, tell me, heavenly bow, if Venus or her son, as thou dost know, do now attend the queen. तो सेरस यहाँ पर उससे क्वेश्चन पूछती है, हेवनली बो, जस्ट टेल मी अ थिंग, इफ वीनस एंड हर सन क्यूपिड, जिनको तुम जानते हो अच्छी तरह से, क्या वो अभी क्वीन को अटेंड कर रहे हैं? क्या वो लोग भी वहाँ पहुँचे हुए हैं? यू मस्ट हैव सीन दैट, कभी आपको इनवाइट किया जाए किसी के यहाँ पर, और किसी दूसरे इंसान को भी इनवाइट किया जाता है, लेकिन आप उस इंसान को पसंद नहीं करते हैं, तो उस इंसान को इनवाइट किए जाने की वजह से आप वहाँ नहीं जाना चाहते हैं. सेम कंडीशन इज़ हेयर. जो सेरस है वो हेट करती है वीनस से और उसके बेटे क्यूपिड से. तो पूछती हैं कि क्या वो दोनों लोग क्वीन को अटेंड कर रहे हैं. एंड व्हाट इज़ द रीज़न व्हाई डज सेरस हेट वीनस एंड हर सन? सिंस दे डिड प्लॉट द मीन्स दैट डस्की डेज माई डॉटर गॉट. कहती है कि उन्होंने प्लॉट किया, कॉन्स्पिरेंसी की, एक षड्यंत्र बनाया, द डस्की डेज. डस्की डेज मीन्स अंडरवर्ल्ड के साथ. वीनस और उसके बेटे क्यूपिड ने अंडरवर्ल्ड के साथ कॉन्स्पिरेसी की और माई डॉटर यानी मेरी लड़की को भगाने में मदद की. इसलिए वो वीनस और उनके बेटे से हेट करती है और कहती है कि क्या वो दोनों लोग भी क्वीन के पास गए हुए हैं. कहती है हर एंड हर ब्लाइंड बॉयज कैंडल्ड कंपनी. तो कहती है कि वीनस और उसका ब्लाइंड बॉय क्यूपिड, उन दोनों की स्कैंडल्ड कंपनी को मैं ज्वाइन नहीं करूँगी.
अगर वो दोनों लोग भी क्वीन को अटेंड कर रहे हैं, जूनो को अटेंड कर रहे हैं, तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। आई हैव फोरसोन यानी आई रिफ्यूज टू गो देयर इफ वीनस एंड हर सन क्यूपिड इज ऑल्सो present there. And after that, Aris replies, of our society, be not afraid. He says that don't be afraid that you will not be among those persons. It means those persons have left the place, they are not attending the queen. कहता है कि उनकी कंपनी की बात तुम मत करो, फिक्र मत करो, वो दोनों लोग वहाँ पर नहीं हैं. I met her deity cutting the clouds towards Paphos. क्या कहता है, मैं उसके डाइटी से मिला था. डाइटी मीन्स देवता भी होते हैं, और उसका जो रथ है, कहता है कि मैं उसके रथ से मिला था. वो कटिंग द क्लाउड्स यानी बादलों को चीरते हुए वो पैफोस की तरफ जा रहे थे. पैफोस इज द हाउस ऑफ वीनस. इसका मतलब वो वीनस अपने बेटे के साथ रथ पर बैठकर बादलों के चीरते हुए पैफोस यानी अपने घर की तरफ चले गई. एंडरसन डब ड्रॉन विद हर. डब ड्रॉन यानी डब जो उसके रथ को खींचते हैं, अपने रथ के साथ और अपने बेटे के साथ अपने घर चली गई है. Here thought they to have done some wanton charm upon this man and maid. वो कहता है कि here thought यानी मैं ऐसा सोचता हूँ कि उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है, कुछ wanton charm किया है. wanton charm यानी गलत नियत से उन पर एक चार्म डाला है, एक जादू डाला है इस मैन पर और मेड पर. हु इज द मैन एंड मेड? फर्डिनेंड एंड मिरांडा. इन्होंने गलत नियत से उन पर अपना मैजिक डाला है. whose woes are that no bed right shall be paid till Hymen's torch be lighted. और कहता है कि ये जो कपल है, ये इन दोनों लोगों ने वोज की है, शपथ ली है, कसम खाई है कि वो दोनों एक साथ बेड पर नहीं जाएंगे जब तक हाइमेंस टॉर्च बी लाइटेड यानी जब तक जो हाइमेन की टॉर्च है वो लाइट नहीं होगी. हाइमेंस टॉर्च बी लाइटेड का मतलब है जैसे कि किसी के यहाँ कोई मैरिज होती है, मैरिज से पहले किसी देवी देवता की पूजा होती है. दे वर्शिप द गॉड और गॉडेस, एंड in that place in Prospero's island they light the torch of Hymen, and Hymen is the goddess of marriage. जो मैरिज की देवी है उसकी टॉर्च को लाइट करते हैं, फिर उसके बाद मैरिज होती है. तो आयरिस उसको समझाता है सेरस को कि फर्डिनेंड एंड मिरांडा ने दोनों ने ये कसम खाई थी कि अपनी मैरिज से पहले हम कभी भी एक साथ बेड पर नहीं जाएंगे जब तक कि हमारी शादी नहीं हो जाती. बट इन वेन, लेकिन उनकी जो कसम थी ये लगता है वेन हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, क्योंकि वीनस और क्यूपिड ने दोनों ने मिलकर एक ऐसा अट्रैक्शन किया है, ऐसा जादू किया है कि शायद वो लोग अपनी कसम को भूल जाएंगे और अपने कसम को तोड़ देंगे. मार्स's हॉट मिनियन इज रिटर्न्ड अगेन. और कहता है मार्स's हॉट मिनियन इज रिटर्न्ड अगेन कि वो दोबारा वापस लौटे यानी अपने घर की तरफ वापस लौट चुकी है वीनस. हर वास्पिस हेडेड सन हैज ब्रोक हिज एरोज. वास्पिस हेडेड यानी जो बर होती है, जैसे हम हिंदी लैंग्वेज में बर बोलते हैं, उसके हेड वाला जो सन है उसने अपने एरोज तोड़ दिए हैं. एंड ही स्वेट्स, उसने कसम खाई कि अभी मैं कोई तीर नहीं चलाऊंगा और स्पैरोज के साथ खेलेगा बच्चों की तरह. यानी वो जादू करने के बाद उसे डर लग रहा है कहीं कोई पनिशमेंट ना मिले, इसलिए वो दोनों लोग घर की ओर भाग गए हैं. एंड बी ए बॉय राइट आउट यानी वो स्पैरोज के साथ खेलेगा और बच्चों की तरह खेलेगा. My dear students, today's class is over and I think
that you are getting the explanation very well. And if you have any kind of problem, ask me through comments, like and share. Subscribe my channel for further updates and more videos. Thanks and have a nice day.